Bismillahirrahmanirrahim. Abhi we are starting to do a surgical steps of a total knee replacement. So first of all, after preparation, history, examination and all investigation, if the patient is fit and consented, we anesthetize the patient usually in spinal epidural combined or in sometimes in general anesthesia. After draping, we position the patient supine with knee flex and a bolster kept for the foot on the table, and then we start with the midline incision over the knee joint. And midline incision, we open the wound with the skin made of skin flaps. After that, we can approach the knee through 3 or 4 different approaches. One is medial parapetalar approach, the second is lateral parapetalar approach, the third is mid-vastus approach, and the fourth one is sub-vastus approach. Most commonly, we use medial parapetalar approach. After doing medial parapetalar approach, we remove the patellar fat pad, osteophytes, and after flexion, we cut the ACL, PCL remaining ligaments, extra meniscus if there is any. After that, we release the deep MCL along with the capsule subperiosteally at the anteromedial surface up to the mid corner of the medial surface of the proximal tibia. After release of the MCL, we check the varus and valgus opening of the joint. If it's okay, then we stop the release. If it's not opening properly, usually in varus knee, so we can release subperiosteally more, but not more than the mid or posterior corner. After that, we start the bony cuts. Usually, it's a surgeon preference whether to do proximal tibia cut or distal femur cut. But in our setup, we usually do tibia cut first. We use for tibia, the mechanical and anatomical alignment is the same. So we usually use the extra medullary jig for the tibial cut. After cutting the proximal tibia, we go to the distal femur. For distal femur cut, we draw a line over the epicondylar axis, wide side line, and then take the entrance point into the medullary canal, because we use intramedullary jig for distal femur resection, different cuts in distal femur resection. For intramedullary insertion, we take 1 centimeter above and medial to the PCL insertion. We do entry into the medullary canal, and then we apply a jig for distal femur cut. We cut the distal femur, and then we apply the jig for sizing with anterior referencing. Usually we can do posterior and anterior as well at the same setting. In this today session, we will do anterior referencing. After anterior referencing, we will put the jig for the size of the femur implant. After sizing, we apply the jig for the same size, and we do 4 or 5 different cuts: the anterior chamfer, posterior chamfer, anterior femur, posterior femur. And after that, we do the box cut with the box reference jig. After box cut, we apply the implant, which is trial component of the femur, trial component of the tibia and poly. After the implant placement, then we will do for the ligament balancing or soft tissue balancing of the knee joint, for which multiple releases and soft tissue releases are needed. Thank you so much. अच्छा, फीमर से स्टार्ट लेते हैं, कोई चीज तो दे दो ना, इसको मार्किंग तो करो। पेन है? अच्छा, अच्छा, ये जो अभी जो हम कह रहे थे कि एंट्री कहाँ से करेंगे, ये सेंटर में क्या चीज है? यहाँ पे जो बोनी प्रोमिनेंसिस है उसको एपिकंडाइल कहते हैं। ये कंडाइल है, कंडाइल से थोड़ी ऊपर जो प्रोमिनेंट एरिया है उसको एपिकंडाइल कहते हैं। ये क्या चीज होगा? एपिकंडाइलर एक्सिस, ट्रांस एपिकंडाइलर एक्सिस। यहाँ से नीचे नाच में ये तो कंप्लीट है, यहाँ पे पीसीएल के फुटप्रिंट है। इससे थोड़ा 1 सेंटीमीटर ऊपर और मिडिल साइड पे यहाँ पे अपने एंट्री बनानी है। ठीक है, समझ आ रही है? ये पहले वो ब्रोच से करते हैं, फिर वो नहीं है, डायरेक्ट है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट है, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जब भी आप
मॉडल इस तरह रख दे। हाँ। जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपने हाथ रखना है कि उसी डायरेक्शन में चले जाए। ठीक है, यहां से हमने, ठीक है, ये बना दिया। तो यूजुअली यहां से हम थोड़ा इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, ये इंट्रामेडुलरी जैक के लिए हमने जगह बना ली। ये फिर आपने सारा कुछ देखना है, खुद डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ये लड़का आपको। ये कितने पे सेट कर दिया? 6। अच्छा, ये यहां से ये डिग्री वेलगस कट एंगल हम सेट करते हैं। ठीक है, ये राइट के लिए है, ये लेफ्ट के लिए है। 5 डिग्री या 7 डिग्री आपने रखना है। ठीक है, रख दिया। ये इंट्रामेडुलरी जैक चला गया। समझ आ गई? जी सर। ये डिस्टल फीमर कट के लिए हम बात कर रहे हैं। ये प्रेस करके ये इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, यहां से हम इसकी रोटेशन देख लेंगे कि आगे पीछे रोटेटेड तो नहीं है। ये सही बैठा हुआ है कि नहीं बैठा। सही बैठा है तो फिर इसमें हम पिन लगाएंगे। दे दे पिन, इस पे लगाएंगे 0। अच्छा, इस पे 3 निशान है, अगर आप देख ले। 3 इस साइड पे है, 3 इस साइड, 0 प्लस और माइनस। स्टार्ट हम 0 से लेते हैं, अगर जरूरत हुई तो हम आगे पीछे जाते हैं। फिर दूसरा दे दे, हैमर निकाले किसी उससे। आपके उसमें हैमर नहीं? अच्छा, ये नहीं जा रहा इससे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, ये आपने डिस्टल फीमर का जिग आपने लगा दिया। अब इसको हम हटाएंगे। ठीक है, ये हट गया अलाइनमेंट रॉड। ये अब हम चेक करेंगे कि सही काट रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं, कम काट रहे हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये कहते हैं चेक ट्वाइस कट वंस। हम पहले साइड से देखते हैं। ठीक है, फिर सेंटर से देखते हैं। सही है। अगर ये इनके बीच जा रहा है तो हम कहते हैं कि सही है, टाइट ज्यादा नहीं है। असिस्टेंट से कहें कि इसके ऊपर कोई चीज रखे और हम इसको काटेंगे। ठीक है, काटो। चलो ठीक है, ला बता सो कट के सुख ठीक यार कही। अच्छा, इसको काट देंगे। ये हमारा डिजिटल कट हो गया। हटाओ। 2 टेक्निकल पॉइंट है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। हटाओ। अब मुझे दे दो डिजिटल, वो दे दो दूसरा जिग। नहीं नहीं नहीं, ये फीमर का दे दो दूसरा जिग। रेफरेंस गाइड तो दे। नहीं, इंटीरियर रेफरेंस नहीं। अच्छा, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो लेटरल जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर इसको हम रखेंगे। ठीक है, नीचे से आपने सेंटर पे करना है और ये इस तरह करना है। सही है, बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ, ये लेटरल है, ये लेटरल है। अच्छा, इस फीमर में मीडियल लेटरल का पता नहीं चलता, आपको नेचुरल उसमें पता चल जाता है। ये ऊपर रख देते हैं ताकि हम नाचिंग ना करें। दूसरी बात यह है कि इसी टाइम सिर्फ ये नहीं देखना पड़ता, पीछे भी आप देखेंगे, इंटरकंडाइलर एक्सिस भी आप देखेंगे। तीनों रेफरेंस एक ही उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तो आपने यहाँ पे मार्क लगानी है। ये
ये पीस है, साइज साइज 3 आ रहा है। हाँ, यहाँ से आपके फीमर का साइज डिसाइड होगा, ठीक है। यार एक चीज ना 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 ना, ना। अच्छा, इस पे हमने नाप ले लिया साइज, ये 3 पे आ गया, तो 3 वाला जिग ले लेंगे हम अभी। तो ये हमारे शेम्फर वगैरह जो काटेंगे ये 3 साइज के मुताबिक काटेंगे। इसमें इसको निकाले जी, तो फिर लगाए क्यों? निशान अब इसके ये आपकी आ गया साइज 3। अब इसमें शेम्फर कट है, इंटीरियर कट है और पोस्टीरियर कट है। ये आप लेंगे तो आपका फीमर यहाँ से प्रिपेयर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स कट लेंगे। बॉक्स दे द्रेवाड़ा बगोरे बटे बांधे कल कल दासी जिदल तब बोलना आसवी ठीक तक ना आगे वो बेजता तो पिक्चर हो खाए मां सरस्ता मोबाइल के सही देखा ना। नहीं अच्छा, ये नी नई है, हमने यूज नहीं किए, तो ये आपको भाई ये किस तरह लगा दिया आपने? किस तरह लगा दिया? तो ये किस लिए फिर? ये ड्रिल के लिए ये आएगा और इसकी ड्रिल आएगी। अच्छा, किस चीज की ड्रिल आएगी? नॉच। तो नॉच तो अच्छा, ये डिस्टल फीमर हमने काटा नहीं है तो इसलिए ये सही नहीं बैठ रहा। जब हम काटेंगे तो ये पीछे आएगा, तो यहाँ से इसकी किसने इम्प्लांट कास्ट के देखे हैं डिस्टल फीमर या जो करते हैं प्रॉक्सिमल टिबिया? ये डिजाइन जो है ये इम्प्लांट कास्ट का है, उसी की कॉपी है मेरे ख्याल में। जीमर का इस तरह नहीं है, जीमर का बॉक्स कट है और साइड से लेते हैं और एक साथ लेते हैं। इसका जो ड्रिल है इस तरह, ये इम्प्लांट कास्ट की डिजाइन के साथ है। तो यहाँ से आप बॉक्स कट लेके उसको टिबिया लगा के और आगे ये लगा के कर लेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट साइजेस है, आप टिबिया के साइज को इससे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोग सारे आ जाए, इसको 5 मिनट देख ले, फिर वकार साहब आपको ACL करवा देंगे। थैंक यू। आ जाए।